Hello and welcome back to the phenomenal session, children, and this is the special video for all kind of students from class 7, 8, 9 as well as 10th grade students. The student those who are having a lots of issues with the chemical formula making, the student those maximum students that don't know yet how to make the chemical formula with the easy tips, tricks and strategy. So that's the reason I am here to teach you, to say you how can you make the chemical formula within a fraction of seconds in a very easy manner. So without making a delay, let us start the amazing session. And if you want the entire PDF, whatever I will be letting you write, whatever I will be letting you teach right here, if you want the entire PDF, the link has been given in the description box. Children, do check the description box in a well manner, right? So without making a delay, let us start. How can you make the chemical formula? Making the chemical formula is very easy. Maximum students are there, those who are going on reading randomly, they used to memorize, they used to mug it up, they used to by heart, but at the end they used to lose the marks in their examination. So here I will be letting you know how you people can understand very well in the tips, so that you people won't forget. If there will be having 200, 300, 500, thousands and thousands of chemical formula, you people can do with the fraction of seconds. So let's start this show with the how to make the chemical formula. Let me say, children, when an element and element mix, it becomes a compound. Let me say element, जब एक element के साथ एक element का संयोग होता है बेटा, when element and element combine to each other, that gives a compound. Clear? Element, I mean to say, when a positive element reacts with a negative element, it becomes a compound. Positive element मतलब ज़्यादातर के element, जब तुम till your standard 10 maximum element there are metals, बहुत सारे metal को तुम पहले element जिसका पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन का मतलब जिसका वैलेंसी प्लस में होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव आयन. हमेशा बेटा याद रखना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का वाले जो एलिमेंट बनते हैं उनसे ही कंपाउंड बनता है. दैट मीन्स पॉजिटिव आयन वाले एलिमेंट और नेगेटिव आयन वाले एलिमेंट जब बनते हैं तो बनते हैं कंपाउंड. एग्जांपल देते हैं बेटा, बढ़िया सा एग्जांपल चिल्ड्रन, लेट मी गिव. व्हेन Na I can say Na is a sodium, I can say when a sodium and having a sodium, no, you cannot understand in this way. Let me give a brief example in this way. Let me write it down, the entire thing, that is sodium chloride. Sodium chloride. If I ask you sodium chloride, sodium, and see, you people can see sodium is having Na plus, sodium Na plus. Plus का मतलब nothing is there, having a monovalent. Monovalent means having a one valency. Sodium plus Na plus 1. Clear? Chloride Cl having a negative 1. If I will be doing in the help of a crisscross, I will get NaCl is the formula. This formula I will be getting NaCl. Clear बात? चलो चमकते और एक बात में. So if I'm not wrong, I can write it down in this way right now. Zinc oxide. If I ask you zinc is a metal. तो a little bit earlier I told maximum पॉजिटिव आयन में तुम्हें मेटल मिलने वाले हैं. टिल योर 10th ग्रेड हमेशा याद रखो, अगर कोई कुछ पूछे तो ये बताना मत, मगर तुम अंदर में याद रखो कि मैक्सिमम पहले वाले एलिमेंट को हमेशा मेटल में एलिमेंट में जाता है, राइट? दैट डजंट मीन एमोनियम इज आल्सो एमोनियम, तो वो मेटल में नहीं जाता, मगर तो मैक्सिमम ज्यादातर एलिमेंट इज जनरली इज गोइंग विद द मेटल. जिंक ऑक्साइड, इफ आई आस्क जिंक Zn, उसका होता है वैलेंसी 2, दैट इज अ बाइवैलेंट, एंड दिस यू हैव टू मग इट आउट. इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद नहीं रखोगे तो फंसोगे बेटा. जिंक, देखो जिंक Zn plus 2. इफ आई आस्क यू Zn 2 plus, so I can write it down 2 plus ऑक्साइड O2 माइनस, अगर ये जाएगा इस तरफ क्रिस क्रॉस बनेगा तो होगा ZnO. दैट मीन्स 2 कैंसिल ZnO, मतलब Zn 2 प्लस इज द जिंक, ऑक्साइड O का उसका वैलेंसी होता है -2. -2 plus 2 कैंसिल हुआ, ZnO बना. अगर तुम अभी now you people were thinking, sir where did you get -2, where did you get O equals to -2, you people will get O equals to -2. कुछ इस प्रकार के स्लाइड में अगर देखोगे तो यहाँ से पता चलेगा मेरा दोस्त. देखो यहाँ पर कहाँ गया ऑक्साइड. या oxide is given over here, that is oxide, you people can see O2. O
2 का माइनस, मतलब ये है तुम्हारा वैलेंसी, राइट। दैट्स द रीजन आई हैव रिटन हियर, दैट्स द रीजन आई हैव रिटन हियर, दैट इज OZNO. Let me make another one, that is potassium carbonate, right? Potassium carbonate. अच्छा, potassium having a single valency, that is I can say monovalent में आता है बेटा। पोटेशियम देखो मोनोवेलेंट होता है, मोनोवेलेंट का मतलब एक वैलेंसी, K प्लस 1, बिकॉज K प्लस का मतलब क्या होता है, K प्लस का मतलब अगर प्लस खाली प्लस, दैट मीन्स हैविंग अ वैलेंसी 1। कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट CO3 माइनस 2, कार्बोनेट CO3 माइनस 2, राइट। नाउ यू पीपल सर हमें तो पता नहीं, तो पता लगाओ, यहाँ पर देखो CO3, अब देखो कार्बोनेट, इट इज द कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट में क्या होता है बेटा, अब कार्बोनेट हैविंग द कार्बोनेट, देखो CO3 इन द कार्बोनेट CO3, आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, I can add in the CO3 2 minus, this 2 minus is the valency, ये वाला जो 2 minus होगा उसको होता है वैलेंसी, CO3 2 minus, that means I can easily write it down in this way that CO3 2 minus, if I'll do a crisscross I will get what, ना K के पास आ जाएगा 2, I will get K2, CO3 is the answer, that means this is the formula, राइट। इफ आई आस्क यू अनदर वन, अब थोड़ा लोचा होने वाला, लोचा का मतलब थोड़ा सा डेंजर होने वाला, डेंजर। लेट मी अनदर वन आई विल डू लेटर ऑन। नाउ लेट मी टीच यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी लॉजिकल बात हम अभी तुम्हें करने वाले हैं, राइट। वेरी लॉजिकल बात थोड़ा कराएंगे अभी ना। आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, पीपल विल गेट कंफ्यूज, जनरली यहाँ पर बच्चे फंसते हैं बहुत। ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आयरन का सिंबल क्या होता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन, व्हाट इज द आयरन, हाउ टू रिप्रेजेंट आयरन। मैनी स्टूडेंट्स विल से सर वी कैन रिप्रेजेंट आयरन इज Fe, एम आई राइट? यस चिल्ड्रन, यू कैन रिप्रेजेंट Fe। अब देखो बात को, आयरन का वैलेंसी अगर मैं पूछूं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन, what is the valency of iron, you people will say sir iron is having 2 valency, some people will say sir iron is having 3 valency। yes children, iron का 2 valency होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है। iron is having 2 valencies, क्या, एक 2 होता है वैलेंसी, एक 3 होता है वैलेंसी। अब थोड़ा सा स्लाइड पे चलते हैं। now you children you see iron how many valency, Fe2 प्लस, मतलब 2 वैलेंसी। अब देखो आयरन ये क्या है ना, Fe3 प्लस हैविंग 3 वैलेंसी। अब तुम बोलो सर क्या बात है, सो 2 वैलेंसी इज ऑल्सो गिवन, 3 वैलेंसी इज ऑल्सो गिवन, तो करना तो करे क्या। अब देखो फेरस एंड फेरिक, अब देखो अब आएगा ट्विस्ट में मजा। फेरस तो जिसका होता है वैलेंसी 2 उसको बोलता है फेरस। इफ आई एम हैविंग 2 वैलेंसी उससे बोलता है फेरस, जिसका होता है 3 वैलेंसी उससे बोलता है फेरिक। अब बात को थोड़ा यहाँ पर आते हैं। आयरन ऑक्साइड को इफ आई कैन से यू व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फेरस ऑक्साइड, यू पीपल कैन से अच्छा फेरस ऑक्साइड Fe हैविंग द वैलेंसी 2 प्लस ऑक्साइड O माइनस 2, क्रिस क्रॉस गया बेटा, 2 गॉट कैंसल, तुम्हारा जवाब बना दैट इज FeO is the answer. But if I ask you what is the chemical formula of ferric oxide, but what is the chemical formula of ferric oxide, what you will say children, ferric oxide means ferric having Fe but having the valency 3, so Fe3 oxide O minus 2. if I will do a crisscross I will get the answer somehow Fe, ये वाला 2 यहाँ पर आएगा बेटा, 2O3 is the answer. Is it clear everyone? So here you concluded that if iron is having 2 valency, that is ferric, ferrous, ferric का 3, ferrous का 2। आई बात समझ में? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर बात को चलो, अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों से पूछूं आयरन 3 ऑक्साइड, इफ आई आस्क यू नाउ, मैं कहूँ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला आयरन 3 ऑक्साइड, यू पीपल से सर इज वेरी इजी, अगेन Fe2O3 इज द केमिकल फॉर्मूला। ना सर कैसे,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 बोलूँ, इफ आई राइट इन द रोमन नंबर 3 दैट मीन्स हैविंग द वैलेंसी 3, इफ आई राइट इन द रोमन नंबर 2 हैविंग द वैलेंसी 2. Clear children? All right. Similarly, there is having a copper, cuprous, cupric, cupric. Now you see children, having the same again children. Oh, कहाँ चला गया रे भाई? Having the same children. Now you see again the same cuprous, Cu plus. कपरस का मतलब Cu प्लस. अब देखो Cu1 का मतलब हैविंग ए वैलेंसी 1. कपरस का होता है 1. कपरस हैविंग 1, क्यूप्रिक हैविंग 2. इसमें से थोड़ा लोचा है. फेरस में था 2 वैलेंसी, फेरिक में था 3 वैलेंसी. कपरस इन हैविंग 1 वैलेंसी, क्यूप्रिक इज हैविंग 2 वैलेंसी. दिस इज ऑल अबाउट वेर इज द शो बैक. Over here is the 2 valency. In this way many more is there, you people can look after it. Okay, all right, coming to this session children, now is very interesting session. Interesting means if I ask you, इसका मतलब और एक इंटरेस्टिंग बता दो. मतलब अगर तुम क्लास 10 में हो ना, पूरा खत्म चकमाचूर. अगर एक बच्चा क्लास 9 में है तो पेज नंबर 36 में जाओ, पेज नंबर 36 ओल्ड बुक में जाओ. अगर एक बच्चे के पास ओल्ड बुक है तो जनरली ही और शी कैन डू वेरी वेल. इफ ए बॉय और अ गर्ल इज हैविंग ए न्यू एडिशन बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 32 में जो दिया गया है बुक में उससे अच्छे से कर लो, तुम्हें आ जाएगा. मगर एक मिसिंग है, दैट इज ए बेरियम. बेरियम का याद रखो, वैलेंसी 2. बेरियम का करना है क्योंकि क्लास 10 में चमकने वाले हो. राइट, नाउ लेट मी से चिल्ड्रन, दैट इज ऑल अबाउट बाइकार्बोनेट. इफ आई आस्क यू बाइकार्बोनेट का मतलब बताओ. बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट. माय डियर चिल्ड्रन, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट का मीनिंग सेम है. HCO3 माइनस का मतलब वैलेंसी 1. इफ आई आस्क यू राइट नाउ कैल्शियम bicarbonate, if I ask you what is the chemical formula of calcium bicarbonate, now you people will say, sir, it's very easy man, sir, it's very easy, we people can do. Can you do? Yes sir. How can you do children? The way it's very easy, you people can do. That is calcium, Ca. Calcium is having Ca. Now you see calcium is having Ca, the 2 plus. बाइकार्बोनेट का मतलब जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब वही है. उनका जो होता है ना बेटा, यहाँ पर देखो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है ना, HCO3. यहाँ का थोड़ा गेम चलेगा भाई. HCO3 मतलब HCO3 का ऊपर का जो माइनस है उसका मतलब वैलेंसी 1. सो आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे दैट HCO3 -1, if I do them in a crisscross it will give a CaHCO3. It is all about the calcium bicarbonate. If I ask you what is the chemical formula of calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी फॉर्मूला यही बनने वाला है मेरे दोस्त. कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मूला यही बनेगा, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. This is also calcium bicarbonate, but a little bit earlier let me go. If I ask you अगर देखो now if I ask you that little bit children, what happened? Yeah, see what's wrong? Yeah, it was good, sorry for the interrupt. Acha, if I ask you what is the bisulfate hydrogen carbon, if I ask you bisulfate, if I ask you now bisulfate अगर मैं पूछूं तो बात बाइसल्फेट का बात एक ही है, हाइड्रोजन सल्फेट का बात एक ही है. बात को थोड़ा समझो, थोड़ा चालाकी देखो. यहाँ पर चालाकी देखो बेटा. चालाकी का मतलब क्या है? बाइसल्फेट, अगर सल्फेट का मतलब क्या है? SO4 सल्फेट वैलेंस इज हैविंग SO4 वेरी इजी वन. SO4 2 माइनस, तो 2 माइनस क्या होता है तुम्हारा?
तो 2 माइनस होता है वैलेंसी। मगर अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं तो -2 वैलेंसी गायब हो जाएगा, ओनली SO4 विल बी देयर। इफ आई आस्क यू हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी इफ आई आस्क यू हाइड्रोजन सल्फेट, ओनली नथिंग वुड बी देयर, H का हाइड्रोजन रहेगा, कार्बोनेट का सॉरी सल्फेट का रहेगा SO4 रहेगा। जैसे कार्बोनेट का CO3 2 माइनस था, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, उसमें से हाइड्रोजन में क्या था HCO3 रहा, 2 माइनस गायब हो गया। द सेम केस सल्फेट, if I ask you what is the chemical formula hydrogen sulfate, H will be there, SO4 will be there, मगर 2 माइनस, जब जितना वैलेंसी है उसको सब माइनस कर देना, यहाँ पर माइनस रहेगा, जितना वैलेंसी दो वैलेंसी it will be get disappear, only minus will be there, H will be there, only this much the chemical formula। अब चलते हैं थोड़ा again in the next slide। So here is having a both, right now I will be making some of the important as well as difficult formula. Let me start with aluminum phosphate. Now you people will get, sir, aluminum phosphate, yes, aluminum is having the valency children 3, Al का 3 प्लस का वैलेंसी। देखो एल्यूमिनियम का होता है 3 प्लस, एल्यूमिनियम इज हैविंग द वैलेंसी 3 प्लस, ठीक है। एल्यूमिनियम इज हैविंग द वैलेंसी 3 प्लस। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉस्फेट, द फॉस्फेट इज हैविंग PO4 3 माइनस। अब देखो क्रिस क्रॉस करता है, PO4 3 माइनस, देखो PO4 3 माइनस, कितना बार कलर चेंज करो जब भाई, PO4 3 माइनस। सो here it has become that AlPO4 is the chemical formula of aluminum phosphate. So if I ask you right now that what is the chemical formula of ammonium carbonate, sulfate, ammonium sulfate, what is the ammonium? Ammonium is having the ammonium का कितना होता है बेटा, देखो NH4 होता है, जिसका वैलेंसी होता है +1। देखो यहाँ पर NH4 कहाँ गया भाई, ammonium NH4, it is having monovalent, and sulfate SO4 2 minus, criss cross sulfate SO4 2 minus sulfate। After doing that I got NH4। अब देखो इसके पास whole 2 आ जाएगा, then SO4 will be there the same। Now you people might be thinking sir why it will be whole 2, क्योंकि 4 के पास अगर मैं 2 लिख दूँ तो 42 बन जाएगा ना, तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज, दैट्स द रीजन ब्रैकेट लगा दे whole 2, that means NH4 whole 2, SO4 is the what chemical formula। चलो एक नए स्लाइड में चलते हैं, अपना मन इच्छा से सवाल लेते हैं और लास्ट केमिकल फॉर्मूला 2-4 बनाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। शुरू करते हैं बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैन वी डू दिस चिल्ड्रन? यस सर वी कैन डू। अब देखो ना, मैग्नीशियम का होता है Mg2+ बाइवेलेंट, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट मैं थोड़ा पहले बोला था, कार्बोनेट का होता है CO3 2 माइनस, ठीक है, CO3 2 माइनस। अगर हाइड्रोजन कार्बन होगा तो ये सब गायब हो जाएगा, ओनली माइनस रहेगा, CO3 रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस का 1, अगर माइनस रहेगा तो 1। अब क्रिस क्रॉस चलाते बेटा, द फॉर्मूला इज MgHCO3 whole 2 इज द फॉर्मूला। जितना बड़ा नंबर भी हो, बड़ा नाम भी हो, तुम लोग कर पाओगे। बेरियम क्लोराइड करते बेटा, बेरियम क्लोराइड। सो यू पीपल माइट बी थिंकिंग सर ऐसे करे तो करे कैसे, हम थोड़ी ना इतना सारा नाम याद कर पाएंगे। यू हैव टू वर्क इट आउट, तुम्हें याद करना है, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक क्या होता है। बेरियम का क्या होता है बेटा, Ba, वैलेंसी 2 होता है। इफ यू आर इन क्लास 9 बुक में वो वाला बेरियम का मिसिंग है, मगर 10th में बहुत इंपॉर्टेंट बात बेरियम का होता है, चैप्टर नंबर 1 2+, कार्बोनेट CO3 का 2 माइनस। इफ आई गो विद द क्रिस क्रॉस आई विल गेट BaCO3। क्लियर बात। चलो और एक चमकाते बेटा, और एक चमकाते हैं, ब्लैक कलर से लेकर चमकाते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, डाइक्रोमेट करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट। अब देखो सर एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है
3 प्लस डाइक्रोमेट का क्या होता है, अब देखो डाइक्रोमेट यहाँ पर आ जाएगा डाइक्रोमेट। अब देखो सर डाइक्रोमेट का मतलब क्या है, दिस इज द डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का मतलब ये होता है Cr2O7 2 माइनस, मतलब वैलेंसी है 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। अब देखो Cr2O7 2 माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा Cr2O7 2 माइनस मतलब 2 माइनस। चलो ले लो क्रिस क्रॉस, आफ्टर हैविंग आई विल बी गेटिंग Al2 Cr2O7 होल 3, यहाँ का जाएगा होल 3 इज द फॉर्मूला। एल्युमिनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है बेटा Al2 Cr2O7 का होल 3, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। मगर मेनी स्टूडेंट्स व्हाट विल डू, एल्युमिनियम डाइक्रोमेट Al2 Cr2O7 होल 3, बट दिस इज नॉट राइट ट्रिक्स, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। उम्मीद है, आशा करते हैं यू पीपल आर यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। सो दिस इज द होमवर्क, यू पीपल शुड से मी पोटेशियम you people should say me what the chemical formula of this potassium carbonate, कमेंट करके बताओ। जिंक हाइड्रोक्साइड and the last one sodium सल्फेट। सोडियम सल्फेट कर देता हूँ। सोडियम क्या होता है Na+1 सल्फेट SO4 -2 क्रिस क्रॉस Na2SO4। I hope this entire session is useful to you. I hope everything is useful. You people have understood very well. So dear children, this is the important. If you want the entire PDF of this, you people can download the entire PDF. We'll have from the description box. The link has been given in the description below. You people can download the entire PDF. But practice makes a man perfect, as you know very well. Without practice, to do a chemical formula is very 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 difficult. प्रैक्टिस करोगे तो ही केमिकल फॉर्मूला बनेगा बेटा, बड़ा बड़ा केमिकल फॉर्मूला तुम बना पाओगे। तो दिस इज द ओनली ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 also they don't know this. So these are the strategy. I hope this session is really helpful to you. Thank you and have a great future ahead. Cheers.